أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، آج آپ لوگوں کا وقت ہے، آپ کے بولنے کا ٹائم ہے، اور کوشش کیجئے گا کہ آپ کی بات 2 یا 3 منٹ کے اندر پوری ہو جائے۔ سب سے پہلے میں ایک فیڈ بیک یہاں پلے کر دوں جو مجھے ابھی کلاس سے پہلے ریسیو ہوا، شاید کہ وہ کسی وجہ سے کلاس میں نہیں آ سکتی یا نہیں بول سکتی، تو میں پہلے وہ پلے کرتی ہوں، اور اس درمیان جن لوگوں کو بھی اپنے فیڈ بیک دینے ہیں وہ ہینڈ ریز کر لیں، میں ایک ایک کر کے آپ کا نام کال کروں گی، اور انشاءاللہ تعالی پھر آپ کی چانس آئے گی بولنے کی انشاءاللہ تعالی۔ 1 منٹ میں پلے کر دوں یہاں پہ، ایک آپ لوگ ویٹ کریں، اس کے بعد بولیں گی۔ السلام علیکم۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ مجھے یہ اپارچونیٹی ملی کہ میں آپ کی ورکشاپ اٹینڈ کر سکوں اور چیزیں سیکھ سکوں۔ اس ورکشاپ کو اٹینڈ کرنے کے بعد جو چینجز میری زندگی میں آئی ہیں، میری نماز میں آئی ہیں، وہ میری دل کو خوش کر دینے والی ہیں۔ یا پھر جیسا کہ ہم نے کچھ کلاسز پہلے سیکھا تھا نفیس، تو میری نماز میں نفیس چینجز آئی ہیں۔ نماز تو میں پہلے بھی پڑھا کرتی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے آٹو پائلٹ موڈ میں پڑھ رہی ہوں، کسی مشین یا کسی روبوٹ کی طرح۔ یہ ایکشنز کی، تکبیر پڑھا، ثنا پڑھی، سورہ پڑھا، تسبیح پڑھا، ہو گیا۔ لیکن اب جب نماز پڑھتی ہوں، ایک ایک ورڈ میننگ کو سمجھ کر، اس کی ویٹیج کو جانتے ہوئے، تو ایک بہت بہت ساری ایموشن سے گزرتی ہوں میں نماز کے دوران، چاہے وہ گریٹفلنس ہو، ہیپینس ہو، یا پھر گلٹ ہو۔ ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ جو میں نماز میں پڑھ رہی ہوں وہ میں سمجھ پا رہی ہوں ابھی، اور میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہی ہوں، کیا دعائیں مانگ رہی ہوں، میں سمجھ سک رہی ہوں ابھی۔ ہدایت کی دعا مانگ رہی ہوں ہم سب کے لیے، اور بہت خوشی محسوس ہوتی ہے سلام کے بعد، سیٹسفیکٹری فیلنگ ہوتا ہے دل میں، دل خوش ہوتا ہے کہ اچھا امپروومنٹ تو آئی ہے نماز میں، پہلے سے کل سے بہتر پڑھ رہی ہوں میں نماز، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اسے اور بہتر کرنے کی کوشش رہے گی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنی اچھی اچھی باتیں سکھائیں، اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے اور آپ کے اپنوں کے لیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم میم، میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی نماز جو کلاس ہم نے لی، نماز تو میں پہلے بھی پڑھتی تھی، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اب میری نماز میں جو خشوع و خضوع ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اسپیشلی مطلب میرا دل کرتا ہے اب خصوصاً اپنی نماز کو لمبا کرنا، اور اپنی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نماز کے اندر جو کچھ مجھے آتا ہے وہ پڑھنا، اور اب تو ماشاء اللہ مجھے سمجھ بھی آ گئی ہے کہ میں نماز میں ادا کیا کرتی ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مجھے بہت اچھا لگا۔ جزاک اللہ خیر وما توفیقی الا باللہ۔ جزاک اللہ فاطمہ، آپ کے اس فیڈ بیک سے ہو سکتا ہے کہ اور لوگوں کو فائدہ ہو، صرف یہی اسی نیت کے ساتھ یہ بات آپ سے سنی جا رہی ہے، اور آپ اس بات کو کہیے بھی صرف اسی نیت سے کہ کیا پتہ میں نئے بیچز میں، یا مجھ سے اکثر لوگ ایسے میسیجز یا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے، تو ان کو میں شاید کہ یہ شیئر کر سکوں ان کے ساتھ۔ فوزیہ، آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے آپ کو جوائن کر کے یہ فائدہ ہوا ہے کہ میں پہلے اپنی نماز کے اوپر پورا فوکس کر سکتی ہوں۔ پہلے بھی میں نماز پڑھتی تھی، لیکن دنیا کی ساری باتیں میرے خیال میں بہت زیادہ آتی تھیں۔ اب مجھے میننگ کے اوپر زیادہ دھیان رہتا ہے۔ اب مجھے یہ پتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہی ہوں، کیا بات کر رہی ہوں، یہ مجھے مطلب اب دھیرے دھیرے کر کے ہر جو جو اپن ارکان ادا کر رہے ہیں اس میں فیل ہوتا ہے گا، اور ایک ایک ورڈ میننگ پھر ذہن میں بھی آتی ہے۔ سب سے اچھی بات یہ لگی کہ سورہ فتح بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن جب آپ نے جو اس کا تصویر ایک کھینچی کے والا دالین، یعنی اپن گمراہ ہو جاتے ہیں جتنا دالین کے راستے پہ، گمراہی کے راستے پہ چلیں گے، سیدھے راستے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ اگر ہم گمراہی کے راستے پہ چلیں گے
तो सीधे रास्ते से उतना ही दूर होते चले जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जज़ाकल्लाह फौजिया। आई थिंक ये उज़मा होंगी जिनका नाम आ रहा है, लेकिन जी जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। उज़मा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने आपकी सारी क्लासेस अटेंड करी हैं, तो बहुत कुछ मैंने सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ने के दौरान, नमाज तो जैसा कि सभी ने बताया कि नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन वही एक इंटरेस्ट के लेवल पे अब जो हम नमाज पढ़ते हैं, टाइम से नमाज पढ़ना, उस हर वर्ड को पे तवज्जो देना, उस पे उसकी मीनिंग के साथ उसको अल्लाह का शुक्र और अल्लाह की तारीफ करना, ये हम लोग के दिमाग में रहता ही नहीं था। बस ये था कि नमाज पढ़ना है, जैसे कि हम लोग के माँ बाप ने सिखा दिया अपने पेरेंट्स के थ्रू, और कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, टाइम हुआ तो हम उन्हें पढ़ ली और जल्दी से। और उसके बाद कभी कभी कोई काम में अगर है, मशगूल है, तो जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट करी और जल्दी दूसरे काम में हम लोग इन्वॉल्व हो गए। लेकिन अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक एक वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताई, और जिसमें कि अल्लाह ताला की तारीफ बताई, और इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। और अभी पूरी तरीके से मैंने नहीं किया है, मैं ये क्यों कहूँ कि मतलब पूरा ही मैंने उसको वो कर लिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोज हम उसको फिर से रिवाइज करते रहते हैं, क्योंकि अब इतना जहन इतना ज्यादा शार्प तो नहीं रह गया है कि एकदम से सारी चीजें जो हैं वो याद हो जाएं, लेकिन उसको डेली रिवाइज करते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी आपके क्लासेस हुए मैंने स्पीकर पे कर दिया, ताकि मेरे बच्चे और मेरे घर में जो भी हैं लोग वो भी इस पे गौर करें। अल्हम्दुलिल्लाह सबने बड़ी अच्छे इंटरेस्ट से सुना और सुनते हैं अभी भी। यूट्यूब से भी मैं डेली उसको फिर से रिवाइज करती रहती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, आपका बेहद शुक्रिया, और सभी लोग को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर। शबाना, शबाना अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाल कर हमारा बहुत ही जो अहम मकसद है उसके ऊपर आपने जो भी मेहनत की है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाजों में खुशू बढ़ गया है, सुकून आ गया है। अब नमाज पढ़ने के बाद सुकून महसूस होता है, और अब डिस्ट्रैक्शन कम होती है। इतना ज्यादा बच्चे और घर के काम में जितना हम मसरूफ रहते थे ना पहले, तो टाइम होने पर नमाज तो पढ़ते थे, लेकिन ऐसी बेजान सी नमाजें थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, और किताबें पढ़ने से ये नहीं होती, ये मसले हल नहीं होते। क्लास में आपको लाइव सुनकर, वो फिर मैंने उसकी नोट्स बनाई, नोट्स लिखी, आपकी क्लास के साथ साथ ही लिखी, कुछ क्लास के बाद लिखी। तो उसके बाद लगा और ज्यादा मेहनत की जरूरत है, तो बस अब वो मेहनत पे लगे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा काम हो रहा है। हमको एक्चुअल में डेला से रात हो जाती है। शुरू की कुछ क्लासेस हमने लाइव ली, उसके बाद हमने ये जो आपने प्लेटफॉर्म फराहम किया है यूट्यूब भी, और फिर ये भी लाइव भी ज्वाइन करे, उसकी वजह से हमारी क्लासेस मिस नहीं हुई है। काफी बड़ा मेरा सर्कल है, हमने आपकी क्लासेस ली। हम वेट कर रहे हैं कि आप जो छोटी सूरा का जो क्लास और शुरू करने वाले हैं, तो हम वो भी ज्वाइन करें, और इंशाल्लाह रमजान से पहले पहले हम छोटी छोटी कुछ 10-20 सूरा याद कर लें, तो हम तरावी फिर हमारे घर पे करें, और अच्छे से इबादत में टाइम डालें हमारा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जज़ाकल्लाह शबाना। और जैसा कि आपने बताया कि आप उस मुल्क से हैं जहाँ पे काफी और टाइम पे क्लास होती है, ये आपका शौक है कि, और अल्लाह ताला की तरफ से ही दिया हुआ है सब कि आप कर रही हैं। और जैसे आपकी उससे मुझे फिर यूट्यूब पे उसको वहां पे रिकॉर्डिंग पड़ी रहने देने में सुकून हुआ, वरना अक्सर आप हाँ जैसा कि हाँ। देखती हैं मैं रिकॉर्डिंग के उतना फेवर में नहीं रहती। लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह जी। मिस हो गई हुई क्लासेस हम बार बार ले रहे हैं। ग्रुप में सारे बच्चे वाले भी हैं, तो जिसका पॉसिबल नहीं रहा, और सब कोशिश कर रहे हैं कि पूरी पूरी हम लें।
उसको पूरा सुने। एक्चुअल में मैंने 7 वाला बैच भी आपका पूरा सुना, और ये 8 वाला भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रुप के साथ जुड़ के मैंने ये भी दोबारा मैंने आपको सुना, बहुत अच्छा लगा। और ये सेकंड टाइम करने की वजह से मैं छोटी सूरा वाला मैंने क्लास मिस किया है। तब हम राह देख रहे हैं कि वो आए, ताकि मैं ग्रुप के साथ ही मैं वो वाला भी फिर से करूं। जी हाँ। और आप सबसे मैं ये कह रही हूँ कि थी तो ये 10 डेज की ही क्लास, आपसे सिर्फ 10 डेज की कमिटमेंट थी हमारी और आपकी। लेकिन फिर जिस हिसाब से मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सूरा भी हम लोग कर लें, हालांकि सूरा की तफसीर आपको बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स की अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे और इधर उधर मिल जाएगी। लेकिन उन लड़कियों की वो थी ख्वाहिश कि इसी पैटर्न पे करें जिस पैटर्न पे नमाज को किया गया। तो इसी पैटर्न पे इंशाअल्लाह ताला नमाज की सूरतें भी आखिर की 15-20 सूरतें जो हम पढ़ते हैं वो की जाएंगी। इस रमजान से पहले पहले उन सूरतों को न सिर्फ समझना है, जिनको याद नहीं है वो उसी दिन उस सूरा को याद भी करेंगी। छोटी छोटी इंशाअल्लाह। 3 आयत, 5 आयत, 7 आयत, मैक्सिमम 11 आयत, और वो भी बहुत छोटी छोटी और बहुत आसानी से याद हो जाने वाली ये सूरतें हैं। तो इनको आप सबसे मैं ये कहूंगी कि जरूर जरूर उस दिन याद करें, समझें। जब आप उसको बार बार याद करेंगे तो जाहिर है मीनिंग चूंकि उसी दिन आपने सुनी होगी, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी और मीनिंग भी आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह सेट हो जाएंगे। तो इन सूरतों को जिनको याद है वो तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं याद है वो कोशिश करेंगे कि उसको याद भी कर लें, समझ भी लें। और रमजान आने वाले, ये पूरा प्लान जो है ये नमाज की वर्कशॉप का, जो कि सितंबर से शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह, वो सिर्फ इसी रमजान को आगे रखते हुए कि आने वाले रमजान से पहले पहले हम कुछ लोगों की ही सही लेकिन नमाजें बेहतर हो जाएं, और एक बेहतर नमाज के साथ हम इंशाअल्लाह ताला रमजान के अंदर दाखिल हों। तो ऐसे में जब सूरह अल फातिहा करने के बाद जब सूरा पढ़ी जा रही थी, जैसा कि मेरे पास कुछ लड़कियों के मैसेजेस आए, अब डिफरेंट बैचेस का अगर हम ले तो बहुत सारे मैसेज इस तरह के हो गए, तो उनका ये कहना था कि बीच में एक ब्लॉक सा आ जाता है कि सूरह हमने तकबीर तहरीमा से नमाज शुरू की और फिर पहुंचे हम सूरह अल फातिहा तक, उसके बाद जब सूरा पढ़ रहे हैं तो फिर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं हम, और फिर रुकू से फिर हमारी नमाजों में जान आ जाती है वापस। तो सूरा को भी कराएं। तो ये सोच के अब कल से ही सूरा की क्लास शुरू होगी इंशाअल्लाह ताला, तो उसको जरूर आप लोग ज्वाइन करें। कुछ प्लान ये है कि सूरा भी कराएंगे ये 15-20, उसके बाद आयतल कुर्सी, इसके लिए भी मेरे पास मैसेजेस आए, और फिर सूरह अल बकरा के आखिरी 2 आयत जिनको कि हमें सोने से पहले पढ़ना चाहिए, और उसकी अहमियत के बारे में भी आप लोग पढ़ना शुरू करें। इन चीजों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इतना वक्त नहीं होता कि बहुत सारी डिटेल में जाया जा सके, तो खुद पढ़ने से एक दूसरा शौक भी होता है, अल्लाह ताला को आपकी तलब भी पता चलती है और उससे ऊपर से बरकतें भी आती हैं। ठीक है, मैं कुछ और देख रही हूँ हैंड यहाँ पे, मुझे लगा कि शायद जिन लोगों को फीडबैक देना था वो खत्म हो गया, इसलिए मैं बोल रही थी। तो मैं बुला लेती हूँ अरहम को, और आप में से जिनको भी अपना फीडबैक देना है वो प्लीज हैंड रेज करें, मैं उनका नाम बुलाती हूँ। अरहम प्लीज माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरहम जी मैम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दिया। मैम जी, नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमे के साथ पढ़ते थे, ये वाकई इसमें बहुत कमी महसूस करते थे कि जो सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह सूरतें तो काफ़ी पढ़ते थे मगर उनका मीनिंग नहीं आते थे ना। तो आपने ये जो बैच नंबर 8 शुरू करवाया ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बल्कि बैच नंबर 6 से मैं ऐड हूँ, 7 भी लिया और 8 में भी अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। अब सूरतें माशाल्लाह आपने आज अल आदियात करवाई है, तो उनमें से बहुत सारी सूरतें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कवर कर ली हैं, अभी कुछ रहती हैं जो अच्छे से याद नहीं अभी हुई, वो उनको इंशाल्लाह टाइम दूंगी मैं। और मैम जी, नमाज के बारे में ये है कि नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पहले पढ़ते थे ना, तो उसमें बस यही होता था कि इतने टाइम में ये नमाज कर लेंगे, फिर ये काम वो काम ऐसे। तो कुछ मैं बच्चों को नाजरा करवाती हूँ, फिर उस हिसाब से असर के टाइम की वो नमाज अक्सर ऐसे ही होता था कि जल्दी में या
लेट हो जाती थी। अब जो बच्चे आते हैं उनको साथ लगा के पढ़ती हूँ, और मैम जी अब पहले से डबल टाइम लग जाता है, मगर पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजर गया। इतने अच्छा ठहराव आ गया है नमाज पढ़ने में ना, इतने अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह होती है नमाज अदा कि दिल करता है कि अभी कुछ और भी पढ़ ले, 2 3 4 सूरतें एक एक रकत में पढ़ के भी सुकून मिलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब समझ आ रही है कि इतने अच्छे तरीके से नमाज अदा करें। और अगर किसी वक्त सुस्ती की वजह से नमाज में लेट हो जाती हूँ ना, तो दिल को बहुत अफसोस होता है। पहले कोई मिस भी हो जाती थी, तो अब जब के ये सूरतों का तर्जुमा पढ़ा ना, तो दिल में अचानक से ख्याल आता है कि नहीं, ये अगर मिस हो गई, लेट हो गई, तो अल्लाह का गजब कितना बड़ा है। तो अल्लाह हमें बचाए, फौरन से हर चीज छोड़ के तो नमाज की तरफ आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये आपकी ये सारे जो हमने क्लासें ली, उस वजह से शायद अल्लाह पाक ने इतनी मेहरबानी की है। अल्लाह पाक से बस यही दुआ फिर करती हूँ कि अल्लाह पाक कबूल करे ये हमारा पढ़ना और आपका सिखाना। अल्लाह पाक बहुत आपको अजर दे, अल्लाह पाक मेहरबानी करे हम पे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा मैम जी। आमीन आमीन या रब। अब ले लेते हैं तंजीम को। तंजीम, मैं सोच रही थी, जब मैंने आपका हैंड नहीं देखा तो मैंने सोचा था मैं आपको आपका नाम लेने ही वाली थी कि बुलाऊंगी, कि आपने हैंड रेस कर लिया। ठीक है, अब तंजीम अस्सलाम बोलिए। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम। मेरी सभी बहनों को भी बहुत बहुत सलाम। डियर मैम, बहुत ज्यादा खुशी हुई आज आपसे मुलाकात करके, और काफी बेहतर हुई नमाज मेरी। और मेरी कोशिश यही रहती है आपकी सभी क्लासेस अटेंड करूं लाइव आकर आपके साथ, और काफी चेंजेस आए मेरी नमाजों में भी, और वक्त पे नमाज अदा हो रही है माशाल्लाह। बाकी लोग प्लीज और माइक म्यूट कर लें, बाकी लोग माइक म्यूट कर लें प्लीज। मैम आपने समझाया इतना तो है ना कि जैसे मायने दिल में उतरते चले गए, काफी रोना भी आया उसको सुनकर। काफी बेहतर हो गई मेरी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जज़ाकल्लाह तंजीम। तंजीम जी उन लोगों में से हैं जो क्लास शुरू होती है उससे पहले यहाँ मौजूद होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बात मैं आप सब लोगों से, जो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वो ये है कि आप मुझे, जैसे जो आपके दिल में जो शुक्रिया की फीलिंग आ रही है, उस शुक्रिया को मैं कहूंगी कि बेहतरीन शुक्रिया आपका होगा वो ये कि आइंदा जब मैं क्लास करूं, ये मैं तंजीम से नहीं बाकी लोगों से कह रही हूँ, तंजीम तो होती है, कि बाकी जो क्लासेस आप ज्वाइन करेंगी इंशाअल्लाह ताला कल से, वो ठीक वक्त पे ज्वाइन करें, बल्कि 2 3 मिनट पहले ज्वाइन करें, तंजीम की तरह। ठीक है? जी इंशाल्लाह। अगर आप चाहती हैं कि मुझे शुक्रिया कहें, हालांकि मैं शुक्रिया के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन बेहतरीन हम अगर मेरे लिए आप कुछ करना चाहती हैं तो बस आप ये करें कि क्लास वक्त पे ज्वाइन करें। उससे मैंने एक वीडियो आपको बना के भेजा था, 1 मिनट, कोई स्क्रीन पे लिख रहा है जी, कि जब पूरी क्लास जिसको आना होता है वो क्लास में शुरू में मौजूद होती है, तो पढ़ाते वक्त अगर मैं कोई पॉइंट लेके आई रहती हूँ कोई इंपॉर्टेंट, तो अगर शुरू में वो होता है तो फिर मैं उसको, ना सिर्फ मुझे पढ़ाना पड़ता है, मेरी पूरी प्लानिंग चेंज हो जाती है कि मैं उसको तब लाऊं जब मैक्सिमम लोग क्लास में मौजूद हो जाएं, तो मेरे लिए भी आसानी होगी और आपको एक बेटर क्लास मिल सकती है अगर आप सब लोग वक्त पे मौजूद हों, तंजीम की तरह। मैं उनका नाम ले रही हूँ सिर्फ इंशाल्लाह। क्योंकि मुझे वो क्लास में शुरू में आके एक मैसेज भी आता था उनका, तो इसलिए मुझे उनका नाम याद है। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि आइंदा जब कभी भी आप क्लास में आए तो चीजों को, और उसके लिए एक आइडिया दिया मैंने कि 15 मिनट पहले का अपने मोबाइल पे आप अलार्म लगाएं और अलार्म को लेबल भी करें, नमाज क्लास या कुछ भी करके आप उसको लेबल करें कि जब वो अलार्म बजे, आपका मोबाइल कहीं भी है, जिसकी भी नजर पड़े मोबाइल घर में, तो वो आपको रिमाइंड कर दे कि आपकी ये क्लास है। 15 मिनट पहले का मैं इसलिए कह रही हूँ कि इससे आप जो काम आपके जरूरी हैं उस 15 मिनट के अंदर करके, आपका अपना काम है, आपके घर वालों का काम है, उनको चाय देनी है, उनको खाना देना है, ये सब काम जल्दी जल्दी आप करके या उसका इंतजाम करके और क्लास में आप सुकून से 2 मिनट पहले आ जाएं।
वो डिपेंड करेगा आपके कैसा है। आप 15 मिनट का पहले का अलार्म लगाएं, आधे घंटे पहले का अलार्म लगाएं, लेकिन अलार्म जरूर लगाओ और वक्त पे क्लास में आए। मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं देखती हूँ कि आधे घंटे गुजरने के बाद मैक्सिमम अटेंडेंस आई। फिर कैसे फायदा उठा सकते हैं हम पूरा का पूरा? आधी क्लास तो हमारी निकल ही गई, आधी बात तो चली ही गई। चले आप रिकॉर्डिंग से, सिर्फ यही एक वजह है कि मैं रिकॉर्डिंग के फेवर में नहीं रहती, क्योंकि कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग लेट कर रही होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, ये सोच कर कि चले रिकॉर्डिंग से पूरा कर लेंगे, खैर है हम लेट भी पहुंच रहे हैं कोई बात नहीं। लेकिन आपको पता है ना कि ये क्लास आप किस लिए कर रही हैं? किसी डिग्री को हासिल करने के लिए नहीं कर रही हैं, किसी नौकरी को पाने के लिए नहीं कर रही हैं, कि जहां पे आप फाइनली कहीं इंटरव्यू दे के और बहुत अच्छा सा इंटरव्यू करके सबको सरपास करके आप आगे निकल जाएंगी। ये ऐसी क्लास तो नहीं है। ये क्लास ऐसी है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहे हैं कि आपकी तलब क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, आप किस तरह दौड़ के आती हैं। कहते हैं ना कि जब हम एक कदम चलते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला 10 कदम हमारी तरफ बढ़ते हैं। इसका क्या मतलब है? वो तौफीक 10 कदम बढ़ने का क्या मतलब है? कि अल्लाह ताला की तरफ से हम जब एक गुना हमारी तलब होती है तो 10 गुना तौफीक उतरती है। जब हम चल के अल्लाह ताला की तरफ जाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू ताला दौड़ के हमारी तरफ आते हैं। क्या मतलब है इन अहादीस का? जाहिर है चलना दौड़ना ये सब क्या है? ये सब तलब और तौफीक है। तो याद रखें कि तौफीक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर तलब। तो सिर्फ इस वजह से, वरना मुझे पता है कि आप सब लोग रिकॉर्डिंग से पूरा कर लेते होंगे, अनलेस अनटिल हमारी कोई ऐसी मजबूरी हो। और जाहिर है मैं तो नहीं जज कर सकती हूँ, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। तो अगर कभी मजबूरी ऐसी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, वो तो अल्लाह ताला देख ही रहे हैं कि ऐसी मुश्किल आ गई। लेकिन इस चीज को हम अपनी आदत ना बना ले, बस ये कहने का मेरा मतलब है। अब ले लेते हैं फरहत अली। फरहत, माइक अनम्यूट करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम जज़ाकल्लाह अस्सलाम। खैरन कसीरा। माशाल्लाह आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह वर्ड टू वर्ड नमाज पढ़ने से बहुत फायदा हुआ। पहले नमाज पढ़ते थे तो तर्जुमे याद था, पर इतने अच्छे से नहीं। तो अल्लाह के शुक्र से अब बहुत अच्छे से नमाज अदा करते हैं, वर्ड टू वर्ड एक एक वर्ड का। तो पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। पहले रोबोटिक तौर पर रुकू सजदा सब, अब सजदों के दरमियान अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी आफ़ीनी वरज़ुक़नी वज़्कुरनी पढ़ते हैं। वो तो अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छा लगता है। और एक एक वर्ड का तर्जुमा, अल्लाह ताला आपकी वक्त में बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, बेहतरीन दुआ है। जज़ाकल्लाह खैर। फरहत, रुबीना आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैम, आपसे के साथ वर्कशॉप करके बहुत अच्छा लगता है हमें, और बहुत अच्छी समझ आती है। आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, और नमाज में बहुत ज्यादा बेहतरी आई है पहले से। अब सुकून से नमाज पढ़ने को दिल करता है, गौर करके मीनिंग पर, हर चीज पर बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए, सेहत आमीन तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन या रब। जज़ाकल्लाह खैर रुबीना। फरहत, जज़ाकल्लाह। फरहत मुनीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो माजरत मैम के मेरी नेट का बहुत ज्यादा इशू, यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए हैं, घर शिफ्ट किया है, तो इतना नेट का इशू है। मुझे इतना शौक था, बहुत अरसे से ये इस चीज की तलब थी, और अल्लाह ताला ने आपके जरिए इसको पॉसिबल बनाया। और आप तो माशाल्लाह बहुत, हमारा पुराना एक छोटा सा तल्लुक कुरान की वजह से वो अल फुरकान ग्रुप के तहत बना था, अल्हम्दुलिल्लाह मैम ताहिरा फर्रुख से। तो मैं उस वक्त से जब मैंने आपकी आवाज सुनी, मैंने, मुझे इतना मेरा दिल खुश हुआ। मैंने कहा चलें, कितनी अच्छी हमारी एक टीचर हैं जो हमें सिखा रही हैं। और मैम मुझे इतना फायदा इस तरह हुआ कि बहुत अरसे से मैं चाह रही थी कि कोई इस तरह से जो है कि हमें रब से करीब कर दे।
میں کہتی ہوں ہم نے نمازیں بڑی پڑھی ہیں، ساری عمر پڑھتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو کمیاں کوتاہی ہیں وہ معاف فرما دے، لیکن جس طرح ڈیپتھ میں آپ نے مطلب سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا تعارف کرایا ہے، اور اللہ کی بار بار اللہ کی قدرت پہ، اللہ کی رحمت پہ، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پہ آپ نے فوکس کروایا ہے، میں کہتی ہوں ایسے دل میں اتر رہی تھی ہر چیز، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ چیزیں فوراً وہ چیزیں دماغ میں چلنی شروع ہو جاتی، پہلے وہ چیز نہیں تھی، فوکس نہیں کر پاتے تھے اس طرح نا، ایسے جلدی جلدی مارا ماری والی سمجھے، کبھی بیچ میں آ بھی جاتا کہ حالانکہ ہم نے نمازیں جو ہے ترجمے سے بھی پڑھا ہوا ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن اس طرح سے فوکسڈ نہیں ہو پاتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں جب آپ نے سورہ فاتحہ کا اسپیشلی آپ نے وہ کیا ہے نا، تو یقین کریں کہ وہ ایسی دل لگا کے ایسے پڑھنے کو دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہم آپ سے روبرو، ہم اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں، اللہ ہماری باتوں کا جواب دے رہے ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ دل سے جو دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ نے بتایا نا سمیع اللہ لمن حمدہ، مجھے ایسے ہی لگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہم کہاں گمے میں، ہم تو اپنی پریشانیوں میں، اپنی مشکلات میں ایسے پتہ نہیں کہاں سرگردہ ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی نماز ہی تو ہے جہاں ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں، ہم اپنے دل کو کھول سکتے ہیں، ہم اپنے دل کی چیزیں نکال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نماز بنائی اس لیے گئی ہے۔ میم بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر فرد، اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو بہتر سے بہترین بنا دے، اور اسی طرح سے ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے ذریعہ بنایا، آمین یا رب۔ جب آپ نے بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ والی بات کہی، سبحان اللہ، مجھے بھی رونا آ گیا۔ تو ایک بچی، میں بہت ڈیٹیل میں تو نہیں بتاؤں گی، لیکن ایک بچی جو اس کلاس کو اٹینڈ کر رہی تھی، 15-16 سال کی، تو کسی کے گھر رہ کے وہ یہ کلاس اٹینڈ کر رہی تھی۔ کلاس اٹینڈ سمیع اللہ لمن حمیدہ پہ میں یہ بات بتا رہی ہوں آپ کو کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہماری کیسے سنتا ہے۔ تو کل اس نے مجھے بتایا کہ کلاس اٹینڈ کرتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کاش کہ میں ان کے ساتھ مطلب میرے ساتھ، کہ مجھے رہنے کا موقع ملے اور میں ان کے ساتھ رہ کے کچھ سیکھوں۔ سوچے وہ دعا اس نے کی، اور کہہ رہی کسی کو میں نے نہیں بتایا، اور ظاہر ہے میں کسی دوسرے ملک میں بیٹھی ہوئی ہوں، وہ کسی دوسرے ملک میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہے کہ آج وہ لڑکی میرے پاس 2 مہینے کے لیے وہ لڑکی موجود ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ دعا، اور ماشاءاللہ وہ اتنے شوق سے سیکھ رہی ہے چیزوں کو کہ مجھے یہ سکھا دیجیے، مجھے وہ سکھا دیجیے۔ تو کل اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے آج تک کسی سے یہ نہیں کہا، لیکن جب اس کو یہ پتا چلا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پلان کر رہے تھے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کی وجہ سے وہ جن کے ساتھ رہتی تھی ان کو وہ آئیڈیا آ رہا تھا کہ وہ اس طرح کریں۔ وہ لڑکی، بہرحال ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، کہ میں یہ بتا رہی ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ملک سے اٹھا کے اس کے ملک میں پہنچایا جہاں پہ وہ رہتی ہے، اور پھر جن کے گھر وہ رہتی تھی ان کے دل میں ڈالا، اور وہ ہمارے پاس، مطلب ہم سب نے آپس میں بات کی، اور آج وہ لڑکی ہمارے پاس ہے پچھلے 15 دن سے۔ اور کل رات جب اس نے یہ بات مجھے بتائی تو مجھے لگا کہ واقعی مطلب کتنا یقین آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس طرح سے پلان کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو بس ہے یہ کہ ہماری، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر ہماری چیزیں قبول نہیں ہوتی تو ہماری طلب میں ہی کہیں کمی ہوتی ہے، ہم اس کو زبانی شاید چاہ رہے ہوتے ہیں، دل سے اٹھی ہوئی ہر دعا دیکھیں اس طرح سے پوری ہوتی ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ پہ میں نے سوچا کہ واقعی ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں
आज सुबह की जो औलाद याद किया उसमें था कि वहुस्सिला मा फिस सुदूर, कि जो दिल में ख्याल चलते हैं वो भी उसको पता होता है, हमें नहीं अंदाजा है। लेकिन क़यामत के दिन ये सारे ख्यालात भी सामने लाके रख दिए जाएंगे। तो इन बातों पे जब ये वाकया मैंने सिर्फ इसलिए शेयर किया यहाँ पे कि हमें वो यकीन आ जाए कि अल्लाह ताला हमारे दिल से सुनता है। जैसा कि खौला रजी अल्लाह अन्हा का जब वाकया पढ़ो तो लगता है कि अल्लाह ताला सुनता है कि किस तरह से ऊपर से वही आना शुरू हो गई। जाहिर है अब वही उस तरह के वाकयात तो नहीं आएंगे, लेकिन चलते फिरते हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से वाकये आते हैं जिससे हमारा यकीन बनता है। फिर देखें कि जब अल्लाह ताला हमें सुनता है और अल्लाह ताला हमें देखता है, तो फिर सिर्फ हमारी नमाजें ही नहीं, हमारी जिंदगी भी बेहतर होनी चाहिए। हमारी नमाजों के अंदर ही नहीं, हम एक बेहतर इंसान हो जाने चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी पूरी की पूरी अल्लाह के आगे है। और एक वक्त और इंशाअल्लाह ताला जब हमें, जैसा कि मैं सुन रही हूँ आप लोगों से, जब अल्लाह की ये मार्फत, ये पहचान हो जाएगी, तब इंशाअल्लाह ताला गुनाहों को करते हुए भी हमें ये ख्याल होगा कि अल्लाह देख रहा है। हमें कुछ बोल रहे होंगे उल्टा सीधा, तो हमें ये पता होगा कि सिर्फ ये सामने वाला ही नहीं सुन रहा है, ऊपर से अल्लाह ताला भी सुन रहा है। सब चीजें नोट हो रही हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, इसी तरह जर्रा जर्रा हमारी हर चीज रिकॉर्ड कर रहा है, और वो सब चीजें उठा के हमको दे दी जाएंगी जब हम, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमसे जो पहले हो चुका उसके लिए बहुत सच्चे दिल से तौबा की शराइत के साथ माफी मांगे। याद रखें, इस्तिगफार का मतलब सॉरी नहीं है, इस्तिगफार एक सॉरी नहीं है, बल्कि उसकी कुछ शराइत हैं, उन शराइत को मालूम करें। इंशाअल्लाह ताला कभी क्लास में ही इसकी बात हो जाएगी, आज मैं नहीं कर रही, जैसा कि आप देख रही हैं कि आज अटेंडेंस फिर कम है, तो नहीं दिल चाह रहा है इस वक्त उस चीज को लेने का। लेकिन तौबा की शराइत के साथ इंशाअल्लाह ताला हम पिछली सारी गलतियों पे, पिछली सारी कोताहियों पे, अपनी पिछली सारी नमाजों पे जो कि हमको लग रहा है कि वैसी नहीं थी, तो उन सब पे अल्लाह ताला से माफी मांगे। याद रखिए, इस्तिगफार नाउन है, ठीक है। अक्सर लोग बोल रहे होते तो मैंने कहा मैं यहाँ बताऊं, इस्तिगफार नाउन है। तो जब हम ये कहेंगे इस्तिगफार मांगे, तो मगफिरत मांगना, लेकिन जब अल्लाह ताला से मांगते हैं तब कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, वहां पे अ और यहाँ पे ई, तो मेरे ई बोलने से आप कंफ्यूज ना हो। इस्तिगफार नाउन है जिसका कि मतलब है मगफिरत, और जब हम अल्लाह ताला से कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, तो ये अब हम अल्लाह ताला से बख्शिश तलब कर रहे हैं। तो हम जब तस्बीह पढ़ेंगे तब कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमारी पिछली सारी कमी कोताही, न सिर्फ, जैसा कि मैं कह रही हूँ, न सिर्फ नमाज के अंदर बल्कि पूरी जिंदगी में हमसे जो भी कमी हुई, हम आज तक गीबत करते आए, हमें अंदाजा ही नहीं था कि समी अल्लाह, कि अल्लाह ताला ने सुन लिया, हम जो कुछ भी कह रहे थे वो सुन लिया अल्लाह ने, ठीक है। हम जब गीबत करें तो हमें इस बात का ख्याल रहे कि समी अल्लाह, अल्लाह न सिर्फ सुनता है बल्कि सुन लिया, कंफर्म हो गया कि उसने सुना। ये चीज हमें हमारी गीबत से रोक देगी, हमारी बुरी हरकतों से रोक देगी। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब न सिर्फ इसी की वो बात है, उस हदीस पे ही इस कोशिश की बेहतरीन नमाज होगी तो हमें हमारी बुराइयों से भी रोक देगी। तो इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ हम बेहतर नमाज पढ़ने वाले बन जाए, बल्कि हमें लोगों से ये फीडबैक आने लगे कि हम पहले से बेहतर हो गए, लोगों की नजर से हमको पता चले कि उनको हैरत हो रही है कि ये पहले से बहुत बदल गई है। तो हम इस तरह के लोग हो जाएं इंशाअल्लाह ताला। और जाहिर है नियत तो हमारी है कि अल्लाह की रजा के लिए, लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। रियाकारी से तो हमें किस कदर बचना है। और ये बहुत ही अच्छी, आप ही लोगों के कहने पे सूरह को करना शुरू किया गया, और ये सारी बातें, मतलब जो अभी हमारा अल्लाह से ताल्लुक बना नमाज में, और इंशाअल्लाह ताला जब इन आखिरी सूरतों को करेंगी तो आप देखेंगे कि कुछ लोग जो बैच 6 और 7 उन्होंने किया और फीडबैक दिया उन्होंने सूरतों के हवाले से, तो वहां से बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी हमारे अखलाक में और हमारी पर्सनैलिटी में इंशाअल्लाह ताला, जब हम उन सूरतों को भी इसी गहराई के साथ करेंगे। एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ देखिए, मैंने कोई टेस्ट नहीं है आपका, कुछ भी नहीं है, लेकिन वक्त निकाल के याद जरूर कर ले।
वरना ये ना हो कि एक चीज आई और चली गई हमारे ऊपर से और वो असल फायदा नहीं हुआ। तो जो भी वर्ड मीनिंग आपको कहे जाते हैं पूरे नमाज के, जो सूरतें कराई जाएं उनको भी इंशाअल्लाह ताला वर्ड मीनिंग उनकी याद करेंगी, क्योंकि देखिए नमाज के लिए आप पढ़ रही हैं, आप नमाज के लिए इन सूरतों को इंशाअल्लाह ताला कल से करने जा रही हैं। जब आप नमाज पढ़ने खड़ी होंगी तो वहां पे आपको अगर वर्ड मीनिंग नहीं आ रही है, जब मीनिंग उसकी आएगी तब मीनिंग के साथ जो आपको तफसीर बताई जाती है, जो अहादीस बताई जाती है, या कोई डे टू डे लाइफ से अगर कोई एग्जाम्पल दिया जाता है, तो वो सारी चीजें तभी याद आएंगी जब मीनिंग याद होगा। क्योंकि अरबिक से तो अभी अरबिक पे इतना अबूर नहीं है कि हम उसको समझ रहे हैं, तो मीनिंग याद होना जरूरी है। नमाज के अंदर तो आप ये नहीं कर सकती कि जाएं आप अपनी नोटबुक खोल के देख ले मीनिंग। तो अगर आप सिर्फ तिलावत करने के लिए वर्ड टू वर्ड मीनिंग कर रही हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप मीनिंग याद ना करें, क्योंकि मीनिंग तो वहां लिखा रहेगा, आपने सूरह को बहुत अच्छी तरह समझ लिया, और जब आप तिलावत कर रही हैं आपके पास मीनिंग आ रही है तो आपको पूरी तफसीर भी समझ में चलती चलेगी जो आप सुनेंगी। लेकिन जब आप नमाज के लिए कर रही हैं, आपकी नीयत ये है कि इन सूरतों को आप नमाज के अंदर पढ़ेंगी, तो प्लीज प्लीज जरूर तर्जुमा याद करें। और जब तर्जुमा याद कर लें, मैं पोल वहां नहीं करती हूँ क्योंकि पोल भी उतना मुझे उतना सिग्निफिकेंट नहीं लगता, अक्सर लोग पोल में वोट नहीं कर रहे होते। आप पर्सनली मुझे मैसेज कर दें, अगर कोई सूरह ऐसी थी जिसकी आपको वर्ड मीनिंग आपने याद कर ली, आप मुझे मैसेज कर दें कि मेरी अच्छी तरह मुझे याद हो गई, तो मुझे जिससे पता चले कि हाँ आप लोग कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब लोग इस बात का भी वादा करें कि वक्त निकाल के वर्ड मीनिंग जरूर याद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और किसी को अगर कुछ कहना है तो मैं वेट करूं, वरना मैं चैट पढ़ के क्लास खत्म कर दूं आज की, और इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं इसी वक्त। जी मैम जी, मैं तो ये शार पढ़ दूं? कोई अरहम आप बोल रही हैं? जी मैम जी। अच्छा, पहले खुशनुमा को ले लें अरहम, आप वेट करिए, खुशनुमा को ले लेते हैं फिर आपको देखना आपकी चार साथी। जी खुशनुमा, अब माइक अनम्यूट कीजिए। जी मैम। मैम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मगफिरा। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपकी ये वर्कशॉप लेके काफ़ी फ़ायदा हुआ है। नमाज तो हम पहले भी पढ़ा करते थे, लेकिन ये जो आपने दो सजदे के दरमियान वाली दुआ बताई है ना, वो मैं काफ़ी टाइम से पढ़ती थी और मैं ये सोचती थी कि ये मतलब सही है, मैं पढ़ती हूँ या नहीं, किसी और को भी आती है। लेकिन जब आपकी ये शॉप लेने के बाद, वर्कशॉप के बाद आपने ये बताई तो मुझे इतनी खुशी हुई बहुत, और इसका मीनिंग्स भी मुझे अच्छे से पता चल गया, तो मैं अब और ज़्यादा अच्छे से इसको पढ़ती हूँ। और ये जो आपने तलब वाली बात बोली है ना कि तलब होती है तो रास्ते अल्लाह में बना देते हैं, बिल्कुल 100% आपने सही बोला है। मैं मतलब दिल में ये सोचती थी, मुझे सीखने का शौक था, मैंने दुआ तो इस तरह की नहीं बोली थी, नहीं की थी, लेकिन ऑटोमेटिक ऐसा रास्ता बना, ये लिंक आपका मुझे मिला और मुझे सीखना था खुद से, अंदर से मैं ये सोचती थी मुझे सीखना है मीनिंग के साथ नमाज। और ये कुरान शरीफ भी मैंने खुद से मीनिंग्स के कुरान शरीफ का तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया है। अभी मेरा 2 या 3 पेज ही मैंने शुरू किए होंगे कि मुझे ये सब रास्ते अल्लाह ने बना दिए अपने आप ही। और ये इतना अच्छा लग रहा है आपका ये सब वर्कशॉप लेके, कि मैं ठीक पढ़ रही थी लेकिन जो कुछ कमियां थी वो आपकी वर्कशॉप से दूर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और आपके वक्त उम्र में बरकत दे। अस्सलाम वालेकुम। आमीन या रब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ अरहम, आप कुछ कह रही थी? जी मैम जी, मैं इस्लामी 2-3 इशार पढ़ना चाहती हूँ मैम जी। चले, उम्मीद है कि आपने अशार को बहुत अच्छी तरह चेक कर लिया होगा, पढ़े। जी मैम। सब पे गालिब है हमारा रब, इस बात को जानते हैं दुनिया वाले सब। जल्जलों के झटके हैं उसकी निशानी, कि अल अजीज ही करेगा खत्म ये कहानी। बारिश की कमी से जो होती है परेशानी, अल्लाह के गालिब होने की है बड़ी निशानी। गर्ज के वही है गालिब और जबरदस्त, ए इंसान ना हो तू जिंदगी में मस्त। करते हैं हम आज अल्लाह से वादा, रहमत और मोहब्बत से कर हमसे वायदा। जज़ाकल्लाह मैम जी। जज़ाकल्लाह खैर अरहम।
आफ्ताब, आप माइक अनम्यूट करेंगी? आप यहाँ देख रही हैं, आफ्ताब आलम के नाम से, ये मेरी बहन है और फर्स्ट वर्कशॉप से ये एट तक इन्होंने कोशिश इनकी होती है कि कोई भी क्लास इनकी मिस ना हो। जब मैं छोटी थी तो मैंने इन्हीं से नमाज सीखी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये है सीखने और सिखाने का सफर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमको हिदायत दी कि हम क्लास अटेंड करें, वरना हमारी क्या मजाल कि हम कुछ सीखें सिखाएं। ये सब अल्लाह ताला ने की वो है मेहरबानी करम। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो हम नमाज पढ़ते थे लेकिन हमको मीनिंग नहीं पता थी उसकी, लेकिन आपका इतना शुक्र है कि आपने क्लास अटेंड करवाया सबको। और हमको अब थोड़ी बहुत मीनिंग आ गई है, अभी पूरी तरह तो नहीं आई है मैम, लेकिन आ गई है अच्छी खासी। और हम चाहते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही बताएं समझाएं, और आपका अंदाज इतना अच्छा है बताने का समझाने का कि जिसको ना भी समझ में आए उसको समझ में आ जाए। बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि अब हमारी नमाज बेहतर होने लगी पहले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह उरूज। बस खूब मेहनत से इंशाअल्लाह ताला इन मीनिंग्स को याद करें, और वही बात है कि नियत में इखलास रखें कि सब काम सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए हो रहा हो, तो आप देखेंगे कि आपको भी बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा। मेहनत और नियत, ये दो चीजें याद रखें, बल्कि अदर वे राउंड, पहले नियत फिर मेहनत। ठीक है, एक अच्छी सी नियत के साथ बहुत सारी मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और आप देखेंगे कि जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगी उतना ज्यादा आपके वक्त में बरकत आ रही होगी, आपको वक्त मिल रहा होगा। तो कभी भी याद रखें कि एक चीज याद रखें कि वक्त के ना होने की शिकायत कभी ना करें, कि वक्त नहीं है इस बात को जबान पे कभी लाए भी ना। बस अगर लगता है ऐसा कि वक्त नहीं है तो बस अल्लाह ताला से दुआ करें और मेहनत और करना शुरू कर दें। ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि वक्त नहीं मिल रहा है पढ़ने का तो पढ़ना और शुरू कर दें। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे होगा, बस किसी भी तरह चीजों को आगे पीछे करके, अपनी 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 चीजों को कम ज्यादा करके उसके पीछे आप लग जाएं तो देखिए फिर वक्त में बरकत भी उतरने लगेगी। वक्त तो बहुत है, यही 24 घंटे अल्लाह ताला बरकत की वजह से इसी 24 घंटे को अल्लाह ताला स्ट्रेच कर देते हैं। किसी शख्स के लिए वो बहुत सारे काम कर जाते हैं। मैं इसको इसी तरह सब लेती हूँ कि जब मैं तफसीर की किताब देखती हूँ, तफसीर की किताब उठाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि क्या वजह है कि मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं हो रहा है, जबकि इन लोगों को अल्लाह ताला ने इसी जिंदगी में, बल्कि ज्यादातर लोगों को आप देखें, बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र कितनी थी, तो हमसे भी कम उम्र में वो बहुत बहुत ज्यादा काम करके चले गए। टाइम पीरियड यही 24 घंटे उनके पास भी थे। तो वक्त ये है कि हमारी अपनी प्लानिंग और हमारी अपनी हरकतों की वजह से, या हमने अपने दिन को ऐसे प्लान किया हुआ है कि उससे बरकत ही उठी हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला वक्त की कमी का कभी भी रोना नहीं रोएंगे, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ करेंगे रो रो के कि हमारी वक्त में बरकत दे दे। फिर मैं एक बार रिपीट करूंगी कि वक्त में बरकत, वक्त ना होने का रोना कभी नहीं रोएंगे, इसकी जगह पे, इस रोने की जगह पर रो रो के अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमारे वक्त में बरकत दे दे। और हम जरूर कर सकते हैं जब भी आप ऐसी चीजों को जो लोगों ने की हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, किसी तफसीर की बुक को उठा के देखें कि एक तफसीर को लिखना कोई आसान काम नहीं है एक जिंदगी के अंदर। क्यों? क्योंकि बहुत मुहतात तरीके पे ये काम किया जाता है, हदीसों के जरिए वो तफसीर को उठा के लिखते हैं, तो ये आसान काम नहीं था। और एक ही जिंदगी में न सिर्फ उन लोगों ने तफसीर लिखी, बल्कि जब हम उन राइटर्स की, उन ऑथर्स की लिस्ट ऑफ बुक्स देखते हैं, जैसे आप इब्न तैमिया की देख लीजिए और दूसरे, तो एक लिस्ट ऑफ बुक्स है। हमें, मेरी जिंदगी में उनको पढ़ना काफी नहीं हो रहा, मेरी जिंदगी काफी नहीं हो रही है उनको पढ़ने के लिए, और वो हमसे भी छोटी जिंदगी में वो लिख के चले गए। तो ये बात प्रूव करती है कि बरकत वर्ड वक्त से अटैच्ड है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी वक्त में बरकत हो, तो फिर
हमें अपने न सिर्फ टाइम को मुनज़्ज़म करना होगा, प्लान करना होगा, कहीं या तो हम वेस्ट कर रहे हैं टाइम, या फिर कहीं जो प्रॉब्लम है मुझे मत, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लोग हैं, जाहिर है हम हर इंसान की अलग प्रॉब्लम है, हमको अपनी प्रॉब्लम ढूंढ के उसको सॉल्व करके और फिर अल्लाह ताला से दुआ करके वक्त में बरकत लेके आनी है, वक्त में बरकत अल्लाह ताला से मांगनी है। क्योंकि अक्सर मेरे पास वक्त का ही आ रहा होता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे एक साथ बोल दूं कि जब भी आप देखें इनकी, इसीलिए इनकी बायोग्राफी पढ़ना जरूरी है। जब इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगी तब लगेगा कि इन्होंने कैसे ये सब काम कर लिए और हम उनका किया हुआ नहीं देख पा रहे हैं, उनका किया हुआ हमें उठाने की फुर्सत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला की ही वजह से ये आइडिया है इस काम को करने का, और इस काम की वजह से आप सब से हमारा ताल्लुक बना, जबकि मैं आपको ना जानती हूँ और ना ही जाहिर है आप मुझे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि इस ताल्लुक के जरिए अल्लाह ताला हम सबको, हमारी नमाजें बेहतर हो, हमारी जिंदगी बेहतर हो, और हम सबको, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर इखलास के साथ हो, इखलास के साथ हो, जिससे कि अल्लाह ताला इसे कबूल करे, और अल्लाह ताला कबूल करने के बाद हम सबको एक साथ जन्नतुल फिरदौस में पहुंचाए, और वहां हम सब इसी आज की क्लास को लेके ऐसी एक घंटा भी हमको वहां मिले कि हम सब बैठ के डिस्कस कर रहे हो कि किस तरह दुनिया में हम बैठ के अपनी नमाजों को बेहतर करने की कोशिश किया करते थे, और अल्लाह ताला ने आज हमको यहाँ पहुंचा दिया। आमीन या रब। खत्म करते हैं आज की क्लास, और मिलते हैं कल ठीक वक्त पर इंशाअल्लाह ताला। फिर मैं कह रही हूँ कि जो 100 लोग यहाँ क्लास ले रहे थे, वो सारे 100 के 100 लोग कल आपके अपने मुल्क, इसलिए मैं कोई टाइम नहीं दे सकती, डिफरेंट मुल्कों से लोग यहाँ पे हैं, आपके अपने मुल्क में जो भी क्लास का टाइम है उस टाइम से 2 मिनट पहले आके क्लास के लिए बैठ जाएं इंशाअल्लाह ताला। क्लास खत्म करते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर मैम।